Hi everyone. So this will be our lecture number 15, I guess, on sampling distribution. And today I'm going to start the F distribution. Sorry, F distribution. Where is my pen? Wait a minute. Yeah. Today I am going to start F distribution. Clear? See, what's F distribution basically? If X and Y are two independent chi-square variates with n1 and n2 degrees of freedom respectively. Then, then see, F distribution will be ratio of chi-square with their degrees of freedom. Ratio of two chi-squares. That's F is equal to that's x divided by n1 y divided by n2. This will follow f n1 comma n2. These n1 and n2 are degrees of freedom. So this is my F distribution, ratio of two independent chi-square variates divided by their respective degrees of freedom. This is my F distribution. What will be the PDF of this F distribution? The PDF will be f of t is equal to n1 divided by n2 raised power n1 divided by 2 f raised power n1 divided by 2 minus 1. This is raised power here. This is raised power n1 divided by 2 minus 1 divided by beta. This is n1 divided by 2 comma n2 divided by 2. n1 divided by 2 comma n2 divided by 2 multiply 1 plus n1 divided by n2 f raised power n1 plus n2 divided by 2, and the range of this will be from 0 to infinity. 0 to infinity. Remember, range of chi-square is same 0 to infinity, but range of t is from minus infinity to infinity, and this F distribution will depend only on degrees of freedom. Now, the derivation of this F distribution is given in FMS. That is, as you can see here, जो भी हमने अभी तक किया है, like in chi-square distribution and in t distribution, we write the joint density function of two marginals and then we transform into new variables. Same we will do here. Say we have chi-square, two independent chi-square with n1 and n2 degrees of freedom. So x follows chi-square with n1 and y follows chi-square with n2. Then we write their joint density function. It's f of y, f of x, f of y, f of y. See, that is black. Yeah, this one. See, this is f of x comma y, which is
product of two marginals. The marginals of this is my f of x and this is my f of y. So these two are multiplied. That's they are independent. Then we can write their marginals. So f of x comma y is written like this. This is f of x. This is f of y. Now we have to prove that x divided by n1 divided by y divided by n2, which will follow f n1 comma n2. See here let f is equal to this and u is equal to this. Then we try to find the Jacobian of this. This is del x by del f del x by del u. This is something like del x by del f, del x by del u, del y by del f, del y by del u. So see from there, from this partial differentiation with respect to f, partial differentiation with respect to u, partial differentiation of y with respect to f, partial differentiation of y with respect to u, as you can see that x is equal to this. v1 and v2 are my degrees of freedom. We replace n1 by v1 here. So del x by del f, del x by del f is v1 divided by v2 into u, as differentiation of f is 1. The other terms will be constant. And del x by del u, del x by del u, here is no involvement of u, so this differentiation of constant is 0. Then same here, we get the Jacobian this. Now then what we will do something that this is my new variable, this is my old variable, but in place of x we write this, in place of y we write this. Simply क्या किया हमने, x की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आया, न्यू वेरिएबल. दिस इज माय न्यू वेरिएबल, ओल्ड वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड दिस इज माय जैकोबियन. क्लियर. ये एफएमएस में, ये थ्योरम एफएमएस में, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर, ये उसमें गिवन है. ठीक है. देन तो ये तो हमारे पास ये आया. देन हम क्या करेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल को हम एक साथ लिखेंगे, f को हम अलग करेंगे और दिस इज द कांस्टेंट को बाहर लेंगे. नाउ अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमारे पास g ऑफ f कमा u आया. नाउ हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए g ऑफ f. f क्या है, f तो ये है ना, हमें इसी का चाहिए ना, मार्जिनल. सो इसको हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे या u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस इज माय मार्जिनल विथ रेस्पेक्ट टू du. तो हम du के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमारे पास जब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपली ये क्या है, ये तो मैं अभी तक आपको बोलता आ रहा हूं ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये डायरेक्ट होगा बराबर, और लिमिट 0 टू इंफिनिटी होगा, ये डायरेक्ट होगा बराबर किसके बराबर होगा, गामा n अल्फा रेज पावर n, इसके बराबर होगा ये. तो सेम वही तो किया है, ये है ना, यही तो किया है, यहां से यही तो किया है. दिस इज अल्फा एंड दिस इज n माइनस 1. देखो ये n माइनस 1 है, n माइनस 1, तो n की वैल्यू ये डाली है इन्होंने, और ये तो अल्फा है, अल्फा रेज पावर n तो यही है. तो यहां से हमारे पास मार्जिनल आया किसका, f का, जो कि f डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने ये यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट क्यों लिया है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है ना कि देखो हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े, लेट इट बी काई स्क्वायर, लेट इट बी टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों में हमने क्या किया, यही तो किया, हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने दोनों में यही किया. तो दिस इज अंडरस्टूड. जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर देखे हुए उनको ये समझ आया होगा कि ये यहाँ से हमने कैसे किया, डायरेक्टली हमने ये कैसे किया विदाउट कि हमने पूरा लिखा, कि मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया ताकि ये अंडरस्टूड है. ठीक है. ना वापस आते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर f इज इक्वल टू x1 डिवाइड बाय n1 x2 डिवाइड बाय n2, ये किसको फॉलो करेगा, f n1 n2. देन अगर आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया
तो ये फॉलो करेगा बीटा सेकंड काइंड n1 डिवाइड बाई 2 n2 डिवाइड बाई 2। ये जो थ्योरम है ये आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ ये तो हमारे पास पीडीएफ है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ तो ये है ना हमारे पास। नाउ कांस्टेंट्स ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, कांस्टेंट्स ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, कांस्टेंट्स ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सी अबाउट origin अगर हम देखेंगे, about origin अगर हम देखेंगे, that's mu r dash which is equal to expectation of f r. So this is nothing but 0 to infinity. What's expectation of f r? That's understood f of r into f of f df. Clear? So follow FMS and calculate mean and variance. This is your homework. Clear? But this is your homework. You can simply follow FMS for this. This is understood. Say mean of f distribution is n minus 2, where n should be greater than 2, n should be greater than 2, and variance is equal to 2n2 square n1 plus n2 minus 2 divided by n1 n2 minus 2 whole square n1 minus 4. This is n1 minus 2, n2 minus 4, sorry, and n2 should be greater than 4. If n2 is greater than 4, then this will exist. If n2 is less than, then variance can never be exist, as I said earlier in previous lecture. And remember, MGF of f distribution does not exist, does not exist. Now finding the mode of this f distribution, for calculating mode we can do one thing, that's use the principle of maxima and minima. What's my f of f? That is f n1 divided by n2 minus 1 upon 1 plus n1 divided by n2 f. This is my PDF. Clear? This is my PDF. n1 plus n2 divided by 2. Then n1 divided by n2 raise power n1 divided by 2 divided by beta n1 divided by 2 comma n2 divided by 2. See, this is my constant. This is my constant. Here is the involvement of f. Here is the involvement of, which is a variable. Or you can write in place of f, you can write x simply. Now to calculate, to differentiate this is some complicated function. Can we do one thing? We can take log f of f. That is, this is my beta, and this is constant. So whole is constant. Log constant is constant. So log constant is constant plus, as you know, log mn is equal to log m plus log n. So this is log m, this is log n, and treat this as log m divided by n. ये इसके डिवाइड में, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, देखो ये इसके डिवाइड में है, ये इसके डिवाइड में है, और ये ऊपर न्यूमरेटर में है, और ये भी डिवाइड में। कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज log mn, this is log m plus n, this is log m plus n. See, this is log m divided by n. So log m divided by n is log
m minus log n. So can we write this as, this is power down, wait a minute, log f n1 divided by n2 minus 1 minus log m divided by n. This is minus log 1 plus n1 divided by n2 f n1 plus n2 divided by 2. Clear? Now, as you know, the property of log mn divided by n is equal to n log m. So this is equal to c plus n1 divided by n2 minus 1 log f minus n1 plus n2 divided by 2 log 1 plus n1 divided by n2 f. Is it clear? Yes. Say, now differentiate. This is del log f of f divided by del f. This is nothing but differentiation of constant is 0. Differentiation of this is n1 divided by n2 minus 1 into 1 upon f log differentiation of log x with respect to x is 1 upon x, and this internal differentiation is 1 minus n1 plus n2 divided by 2, and differentiation of this is 1 upon 1 plus n1 divided by n2 f, and internal differentiation of f is n1 divided by n2. That's internal differentiation of f is 1, but here is the constant, that constant will come out, and differentiation of f is 1. Clear? Now put this equal to 0. As you know, put this equal to 1. Clear? So when we put this is equal to 1, we get n1 divided by n2 minus 1 into 1 upon f is equal to n1 plus n2 divided by 2, 1 upon 1 plus n1 divided by n2 f into n1 divided by n2. From here we get the value of f is equal to n2 n1 minus 2 upon n1 n2 plus 2. This is mode, and it will exist when n1 is greater than 2. n1 is greater than 2. So this is the mode. ये याद होना चाहिए, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है, डायरेक्टली पूछा गया है कि व्हाट्स द मोड ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड यू नो जब ये होगा, मतलब जब ये होगा एफ डबल डैश एफ इज लेस देन 0, तभी तो ये मिनिमा होगा ना, सॉरी तभी तो ये मैक्सिमा होगा, तभी तो हम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, विच इज द मोड. मोड क्या है? मोड तो मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, एंड रिमेंबर mode of f distribution is always less than unity. It's always less than unity. And mean of f distribution is always greater than unity. It's always greater than यूनिटी. ये दो चीजें आपको याद रखनी है, और मोड भी याद रखना है. ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है. कौन से एग्जाम है? एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो आईएसएस हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है. ठीक है. नाउ अगर हम स्क्यूनेस की बात करेंगे, व्हाट स्क्यूनेस? स्क्यूनेस इज मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा से मोड क्या है? मोड इज लेस देन 1. मीन क्या है? मीन इज ग्रेटर देन 1. वेरिएंस क्या है? विच इज ग्रेटर देन 0. तो जब ये सारा पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं ना कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड है. कैसे? देखो, जब मीन ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस लेस देन 1 इज पॉजिटिव. ये भी तो पॉजिटिव है, तो पूरा क्या बनेगा? पॉजिटिव है. तो हमारा ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉजिटिव स्क्यूनेस. क्या है? पॉजिटिव स्क्यूनेस. नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, एक थ्योरम है
विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा वो आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, थ्योरम्स तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ जाती है, बट जो रिजल्ट्स है थ्योरम्स के वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, सी इफ f, let's suppose n comma n degrees of freedom represents f variate with n comma n degrees of freedom, then prove that f m comma n is distributed as 1 upon f n comma m। क्लियर? सो इसका मतलब है सिंपली कि जो प्रोबेबिलिटी p n comma m जो है, अगर ये ग्रेटर देन c हुआ तो ये किसके बराबर? ये है बराबर प्रोबेबिलिटी f m comma n लेस और इक्वल टू 1 by c। ये आपको प्रूव करना है, सिंपल सा है, 2 स्टेप्स में इसका आंसर। सो देखो कैसे, देखो कैसे 2 स्टेप्स में इसका आंसर क्या है। x एंड y मैं मान के चलता हूं दे आर इंडिपेंडेंट, chi square, इंडिपेंडेंट chi square वेरिएट्स। ठीक है, देन f क्या है मेरे पास? x डिवाइड बाय n y डिवाइड बाय m विच विल फॉलो f n comma n। क्लियर है? तो अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल लूंगा 1 by f लिखूंगा ऐसे, तो वो क्या होगा? वो होगा y by m डिवाइड बाय x by n विच विल फॉलो f m comma n। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर f इसको फॉलो करेगा तो इसका रेसिप्रोकल इसको फॉलो करेगा। तो 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 therefore probability f n comma m अगर ग्रेटर देन c हुआ, this will be equal to probability 1 upon f m comma n less or equal to 1 by c। तो ये होगा बराबर प्रोबेबिलिटी f m comma n less than equal to 1 by c। ये तो यही है, ये तो यही है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? अगर एक ग्रेटर देन है दूसरा लेस देन होगा। यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे n comma n है, इसका रेसिप्रोकल ना, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। एज यू नो, देखो अगर x इज ग्रेटर देन y तो 1 अपॉन x इज लेस देन 1 अपॉन y। जब भी हम किसी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो इक्वलिटी इनइक्वलिटी चेंज होती है, इनइक्वलिटी चेंज होती है तभी। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वलिटी तभी मैंने चेंज की। ठीक है, तभी मैंने चेंज की। देन मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, वो ये आया, तो लेस देन इक्वल टू c है। सिंपल सी बात है। एंड if probability f n n comma m is greater or equal to c, अगर इसकी वैल्यू अल्फा है, मान लो इसकी वैल्यू अल्फा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आनी चाहिए। आप दोनों को ऐड कर लो, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी f m comma n less or equal to 1 by c is equal to 1 minus probability f m comma n greater or equal to 1 by c which is equal to 1 minus, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी f अगर ये लिखा है, अगर ये देखो ये लेस देन है ना, ये लेस देन है, और ये क्या है? ये ग्रेटर देन 1 by c है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। समझ गए? देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वेट अ मिनट,
इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी। वेट अ मिनट, अगर ये है तो हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ एम कमा एन अगर लेस देन ये हुआ तो ये होगा बराबर प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ अगर ये इसके बराबर है लेस देन है एफ ऑफ एन कमा एन विच इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 1 माइनस है, इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा होगी। सिंपल सी बात है, 1 माइनस अल्फा होगी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे, एक तो अभी चल रहा है, नेक्स्ट इसका लेक्चर 1 आएगा फिर से, तो उसके बाद आपका ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। रिलेशन बिटवीन टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ टी के एफ के ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर टी फॉलो टी एन, देन अगर हम टी स्क्वायर लिखेंगे तो ये फॉलो करेगा एफ वन कामा एन। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे, ये रिजल्ट है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन ऐसे देंगे, इफ टी फॉलो टी एन देन फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, जो एफ का होगा, सिंपल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, एन एन माइनस टू है इसका, अभी तो देखा था। सी अगर फाइव है, फाइव फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1, तो फाइव स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 1। क्लियर, देन अगर यहां से x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन t इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय काई स्क्वायर डिवाइड बाय n, दिस विल फॉलो tn। इतना क्लियर है क्योंकि हमने t तो पढ़ा है ना, t यही होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिवाइड बाय काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बट रूट में। अगर हम इसी का स्क्वायर लेंगे, t स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर डिवाइड बाय काई स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसका तो 1 ही है ना, डिवाइड बाय काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस विल फॉलो f 1 कामा n, क्योंकि काई स्क्वायर हमने तो देखा ना x डिवाइड बाय n1 y डिवाइड बाय n2, दिस विल फॉलो f n1 कामा n2। वैसे ही सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा के ये f1 कामा n को फॉलो करेगा। नाउ इसके बाद रिलेशन बिटवीन chi-square and f, chi-square and f. Say in f n1 n2 distribution, अगर हम let n2 को टेंड कराएंगे इंफिनिटी को, देन chi-square क्या होगा, ये होगा n1 f। अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे n1 से, तो ये फॉलो करता है chi-square with n1 degrees of freedom. Remember this is the beautiful concept, beautiful, क्या लिख दिया मैंने, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस गेट में भी पूछा है, शायद जैम में भी पूछा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, इसका आंसर मेरे को बता देना। क्वेश्चन इज, ये जैम का क्वेश्चन है, लेट x1 x2 up to xm comma y1 y2 yn be IID normal 0,1 random variables, then w is equal to n summation xi square divided by summation yj square मल्टीप्लाई m भी है इसके साथ, तो ये फॉलो करेगा डैश डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शंस है chi स्क्वायर m प्लस n t n माइनस 1 f m कामा n नन। एक मिनट पॉज लेके
खुद से ट्राई करना। जिसको ये क्वेश्चन आया ना, मैं मानता हूं उसने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर कर लिया। जिसको ये क्वेश्चन आया, काई स्क्वायर पे ही है ये, काई स्क्वायर और एफ पे ही है ये। तो मैंने आपको पढ़ाया है W इज इक्वल टू काई स्क्वायर विथ n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर विथ n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये किसको फॉलो करेगा? एफ n1 n2। इसका ऑप्शन डायरेक्ट नन है, क्योंकि इनमें से ये किसी को फॉलो नहीं करेगा। सी, ऊपर क्या है? ऊपर है समेशन एक्स आई स्क्वायर, summation xi square, this I is equal to 1 to m something, 1 to n है। summation xi square divided by m degrees of freedom, then summation yi square divided by n degrees of freedom। देखो देखो, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। देखो ऊपर क्या है? ऊपर स्क्वायर है इसका, चाहे अंदर कुछ भी होगा स्टिल ये काई स्क्वायर 1 नहीं है, मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, स्टिल ये काई स्क्वायर 1 नहीं है। क्योंकि देखो ये इस पे स्क्वायर है, ना कि ये इंडिविजुअल टर्म्स पे स्क्वायर है, ये होल पे स्क्वायर है। कैसे सर? देखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ये किसको फॉलो करेगा? काई स्क्वायर 1 को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे समेशन लिखूं मैं, उसका स्क्वायर ले लूं, वो भी तो काई स्क्वायर 1 ही को फॉलो करेगा ना। देखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये काई स्क्वायर 1 को फॉलो करेगा ना। अब देखो ये है समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये काई स्क्वायर 1 को फॉलो करेगा। और ये देखो ये इंडिविजुअल समेशन वाई आई स्क्वायर का मतलब है वाई आई स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर अप टू वाई एन स्क्वायर। तो ये किसको फॉलो करेगा? ये काई स्क्वायर एन को फॉलो करेगा। इसका मतलब है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये एफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एफ एफ 1 कामा एन को फॉलो करेगा, दैट्स एफ 1 कामा एन को फॉलो करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अच्छा है, ये कंसेप्ट अच्छा है। अब मैं आपको ऐसे बताऊं, रुको, देखो कैसे। देखो अगर मैं लिखूं z इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, एंड मैं लिखूं z इज इक्वल टू समेशन एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ये होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर मान, और ये है x1 स्क्वायर, बट समेशन में ही है ना, ये पूरे पे है। लेट सपोज मैं इसको ऐसे लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xm का स्क्वायर। इसमें और इसमें देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। हेल ऑफ डिफरेंस मतलब क्या? ये इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स का स्क्वायर है, तो ये बनेगा ना काई स्क्वायर n और ये बनेगा ना काई स्क्वायर 1। सिंपल सी बात है। यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में, यही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। Now one more beautiful question, beautiful question from F distribution, beautiful concept है। एंड उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा, देन नेक्स्ट लेक्चर एक और लगेगा, क्योंकि उसमें जो थ्योरम्स है ना, क्या बोलूं मैं, वो थ्योरम्स क्या है? बी इंडिपेंडेंट chi square variates with 2, 2, 2 degrees of freedom. Let u is equal to x divided by y, v is equal to 2z divided by x plus y, then choose false statement या false option, statement नहीं false option। पहला v follow beta 1 2, u follow beta first kind 1 1, this is first kind। Number 3, u follow f
F2, we follow F2, 4. D. You follow F2, 2. क्लियर? से इसको हम कैसे करेंगे? सिंपल जी, इसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए। रिजल्ट्स क्या है? देखो, व्हाट्स यू? यू इज x डिवाइड बाय y। अब देखो, x क्या है? काई स्क्वायर वेरिएट विथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। y क्या है? काई स्क्वायर विथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये सिंपली किसको फॉलो करेगा? u है, u की बात कर रहा हूं। इट सिंपली किसको फॉलो करेगा? u किसको फॉलो करेगा? u फॉलो करेगा किसको? क्लियर है? क्लियर है? u फॉलो करेगा इसको, क्योंकि काई स्क्वायर विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ ये तो फॉल्स है ना, दिखा तो आपको पहले ही, ये तो फॉल्स है। यू तो F2, 2 को फॉलो कर रहा है, इन्होंने कहा ये बीटा को फॉलो करेगा, तो यही तो फॉल्स है। अब v की बात करेंगे हम। अगर हम v की बात करेंगे, दैट्स 2z अपॉन x प्लस y। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? z डिवाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम x प्लस वाई डिवाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इनका ऐड होगा ना, काई स्क्वायर में m प्लस n एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो वही वापस से बना ना, 2z अपॉन x प्लस वाई। अब ये किसको फॉलो करेगा? F2, 4। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। और अब देखो, अब देखो, सिंपल सी बात है। देखो आप, अब देखो, आपको पता है x डिवाइड बाई वाई फॉलो कर रहा है, अगर काई स्क्वायर है तो वो फॉलो करेगा बीटा 2 n डिवाइड बाई 2 m डिवाइड बाई 2। और x प्लस वाई फॉलो करता है बीटा फर्स्ट काइंड m डिवाइड बाई 2 n डिवाइड बाई 2। ये बीटा फर्स्ट काइंड, यही तो पता है ना। तो v क्या है? v तो यही है, बीटा फर्स्ट काइंड, यही तो है, 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि यहाँ यही तो देखा ना आपने, 2, 4। इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? m यहाँ पे 2 होगा, तो बीटा 1 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, दैट्स 1 डिवाइड बाई 2। ये तो ट्रू है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये आपने काई स्क्वायर में मैंने आपको पढ़ाया है, प्रूव भी कराया है, इसका डेरिवेशन जैकोबियन से, ये काई स्क्वायर से बीटा में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपको पता ही। बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। अब किसी ने सोचा होगा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, बहुत लंबा जगह, इतना टाइम नहीं होता है आपके पास एंट्रेंस में। एंड अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर लो, मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर, टुडेस लेक्चर, दैट्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इफ x follows f m n, y follows f n n, and y जो है y is equal to 1 upon x, then expectation of x y, या सिंपली ऐसे लिख लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, दे आर इंडिपेंडेंट, they are independent। x expectation of x, expectation of y, that's expectation of x into expectation of 1 upon x। अब देखो, ये तो इसी का रेसिप्रोकल है ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x दैट्स m n minus 2, m n minus 2, और ऊपर अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देखो, x follows f m n, that's expectation of x is n minus 2, sorry, this is n minus 2, n minus 2, और 1 by x follows f m n m, तो इसका कितना होगा? m minus 2, that's m minus 2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और सेमेस्टर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ये है आपका, और m शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है, m शुड बी ग्रेटर देन 2। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपके ISS एंड CUET PG में पूछा गया था ये क्वेश्चन, CUET PG एंड ISS, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है।